Hello student, let us continue with our chapter. In this lecture, we'll see the renunciation of share. A company can offer its existing shareholders additional shares called rights shares. जो कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स है, उसको कुछ एडिशनल शेयर ऑफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड राइट शेयर्स. Renunciation is a process where an existing shareholder can give up some or all shares offered as right shares to him in favor of another person. Renunciation क्या है? Is a process where an existing shareholder can give up some or all shares offered as right shares to him in favor of another person. The shareholder is expected to fill a form called the letter of renunciation. For this, companies make provision for this in their articles. Articles में ये इसके बारे में भी provision कंपनी को रखना है. A letter of renunciation is enclosed with the letter allotment letter itself. Allotment letter के साथ ही letter of renunciation attach होता है. A letter of renunciation is divided into two parts. दो पार्ट में लेटर उसका डिवाइडेड है renunciation का. The first part is a letter of renunciation in which the original shareholder signs and state that he wants to renunciate some or all shares in favor of a certain persons. पहला ऐसा पार्ट में क्या है, जो ओरिजिनल शेयर होल्डर है वो साइन करता है एंड स्टेट करता है, दैट इन्फॉर्म करता है, राइट करता है दैट ही वांट्स टू रिनाउंसिएट सम और ऑल शेयर्स इन फेवर ऑफ सर्टन पर्सन. सर्टन पर्सन के फेवर में कुछ शेयर या ऑल शेयर को रिनाउंसिएट करना है, ही वांट्स. The second part is a request for allotment of shares. Second part जो है वो request allotment of shares. The person in whose favor shares are to be renunciated signs and requests the company to allot shares to him. जो request है, the person in whose favor shares are to be renunciated signs and requests the company to allot share to him. वो पर्सन वो कंपनी को रिक्वेस्ट करता है साइन करके कि दैट शेयर्स अलॉट करना है उसको, allot shares to him. Company decides a time limit for sending the renunciation letter. Renunciation letter के लिए कंपनी टाइम लिमिट डिसाइड करती है वो भेजने के लिए. If the letter is received from the original shareholders within the time limit decided by the company, कंपनी ने जो टाइम डिसाइड किया है उस टाइम लिमिट में ओरिजिनल शेयर होल्डर ने अगर वो लेटर रिसीव्ड कर लिया है, the company make appropriate notes in statement of application and allotment. कंपनी appropriate इसमें नोट डालती है स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के टाइम पे. एंड व्हेन द लिस्ट ऑफ मेंबरशिप इज प्रिपेयर्ड, और जब वो लिस्ट प्रिपेयर्ड होती है, द नेम ऑफ द अदर पर्सन इज रिकॉर्डेड एज अ मेंबर. और जो पर्सन रिकॉर्ड हुआ है जिस उसका नाम भी मेंबर में रिकॉर्ड हो जाएगा. स्टेटमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट मीनिंग newly established companies invite the general public to subscribe to their shares in a public issue through a prospectus. अभी ये आपको सब पता ही है कि कोई भी नई एस्टैब्लिश कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है टू सब्सक्राइब टू देयर शेयर्स, उसके शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए इन ए पब्लिक इश्यू के दौरान थ्रू प्रोस्पेक्टस के जरिए. आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशंस इन रिस्पॉन्स टू दिस इन्विटेशन, ये एप्लीकेशन
आने के बाद इनविटेशन जो दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा कि शेयर्स को क्या बेसिस पे अलॉट करना है अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड डिसाइड्स में नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड टू रिस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स। और जो रिस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स है उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो डिसाइड किया हुआ है नंबर ऑफ शेयर्स कितना अलॉट करना है। अ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग नंबर ऑफ शेयर्स allotted to each applicant is called a share allotment statement। जो स्टेटमेंट ऐसे एप्लीकेंट का लिस्ट बनाती है जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितना अलॉट किया है, दैट इज कॉल्ड शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट। In such a statement, the name of applicant, address, number of shares applied for, number of shares allotted, demat account number, depository ID, permanent account number, etc. are mentioned। और इसमें ये सारी चीज़ मेंशन किया होता है। Nowadays, such statements are prepared with the help of a computer software। आजकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हेल्प से ऐसे स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। नाउ ड्यूटीज ऑफ ए कंपनी सेक्रेटरी विथ रिस्पेक्ट टू ए शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट के दौरान कंपनी सेक्रेटरी की क्या ड्यूटीज है? अ कंपनी सेक्रेटरी इज रिक्वायर्ड टू the perform following duties in respect to share allotment under the provisions of the Indian Contract Act and the Companies Act। Companies Act and Indian Contract Act के प्रोविजन के मुताबिक कंपनी सेक्रेटरी को ये शेयर अलॉटमेंट के दौरान कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है? फर्स्ट, opening an escrow bank account with a scheduled bank by passing a resolution in the meeting of board of directors। board of directors की मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके एक एस्क्रो बैंक अकाउंट शेड्यूल बैंक में खोलना है। ड्रॉइंग एन एग्रीमेंट विथ ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फॉर द लिस्टिंग ऑफ शेयर्स। ऐसा एग्रीमेंट करना है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के साथ फॉर द लिस्टिंग ऑफ शेयर्स, शेयर्स को लिस्ट करने के लिए। ड्रॉइंग एन एग्रीमेंट विथ वेरियस इंटरमीडियरीज लाइक लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार, बैंकर्स टू द इश्यू, डिपॉजिटरी, ब्रोकर्स एटसेट्रा फॉर द पब्लिक इश्यू। पब्लिक इश्यू के लिए ये वेरियस इंटरमीडियरीज जो होते हैं उनके साथ एग्रीमेंट करना है। fulfilling statutory provisions for withdrawal of share applications and closure of subscription list। जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस होती है उसको फुलफिल करना है, जैसे कि शेयर्स एप्लीकेशन को विड्रॉ करना हो और सब्सक्रिप्शन लिस्ट को कभी क्लोज करना है। प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स इन डिफरेंट कैटेगरीज। Preparing list of applicants in different categories, categories wise applicants का list prepare करना है। Arranging meetings of the board of directors for allotment of shares and preparing minutes of such meetings। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अरेंज करना है फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अलॉट करने के लिए, एंड प्रिपेयरिंग मिनट्स ऑफ सच मीटिंग, और ये ऐसी मीटिंग का मिनट्स प्रिपेयर करना है। इन्फॉर्मिंग एप्लीकेंट्स रिगार्डिंग शेयर अलॉटमेंट, सच इन्फॉर्मेशन इज गिवन थ्रू SMS एंड ईमेल इन प्रेजेंट टाइम्स। अभी ये SMS या ईमेल के द्वारा एप्लीकेंट्स को इन्फॉर्म करना है रिगार्डिंग शेयर अलॉटमेंट, कितना शेयर आपको अलॉट हुआ या किया। इन्फॉर्मिंग एप्लीकेंट्स रिगार्डिंग नॉन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जिसको अलॉट नहीं किया है ऐसे एप्लीकेंट्स को भी इन्फॉर्म करना है। फाइलिंग द शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज,
रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में शेयर अलॉटमेंट का स्टेटमेंट को फाइल करना है। रिलीजिंग पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशंस इफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट हैज़ बीन एंटर्ड इनटू, अगर अंडरराइटिंग एग्रीमेंट कुछ हुआ है तो अंडरराइटिंग कमीशन का पेमेंट को रिलीज करना है। रिलीजिंग पेमेंट ऑफ एज एग्रीड अपॉन रेम्यूनरेशन टू लीड मैनेजर, डिपॉजिटरी, ब्रोकर्स, रजिस्ट्रार टू द इश्यू एटसेट्रा। इन लोगों के साथ भी जो कोई रेम्यूनरेशन एग्रीड हुआ है तो उसका पेमेंट भी रिलीज करवाना कंपनी सेक्रेटरीज का ड्यूटी है। Getting the shares listed on recognized stock exchanges after allotment, allotment हो जाने के बाद ये शेयर को लिस्ट करना है recognized stock exchange में। So these are the main duties of company secretaries while allotting the shares. So here we stop our lecture. Next lecture will continue share call etc.